लेबर फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर के ज़ेरे इंतजाम ब्राइटन में इशाइया तकरीब हुई, जिसमें बरतानिया भर से लेबर पार्टी के सरकर्दा रहनुमाओं और पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने शिरकत की। मुकर्रीन ने भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियों पर बरतानवी हुकूमत और आलमी बरादरी से किरदार अदा करने का मुतालबा किया। तफसीलात काबिर राजा की रिपोर्ट में देखिए। ब्राइडन में लेबर फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर की जानिब से पार्टी के सैकड़ों सरकर्दा रहनुमाओं, MPs और काउंसलर्स समेत पाकिस्तानी हाई कमीशन की मौजूदगी में इशाइया का एहतमाम किया गया। इशाइया का मकसद भारतीय गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू और कश्मीर के मसले पर आगाही देना था। तकरीब में लेबर पार्टी के शेडो मिनिस्टर फॉर एशिया स्टीफन कनाक, लेबर पार्टी की नेशनल कैंपेन कोऑर्डिनेटर शबाना महमूद MP, लेबर पार्टी स्कॉटलैंड के लीडर अनस सरवर, लेबर फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर के चेयरमैन एंड्रियो गवान, MP अफजल खान, लॉर्ड वाजिद खान, MP रेचल हॉपकन, काउंसलर लैला भट्ट और दीगर नुमाया शख्सियात शरीक हुई। तकरीब में लेबर पार्टी को चलाने वाली नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के 8 मेंबरान भी शामिल हुए, जिनको कश्मीर के मसले पर ब्रीफिंग दी गई। मुकर्रीन ने लेबर पार्टी के प्लेटफॉर्म से कश्मीर के पुरअमन हल के लिए अपनी कोशिशें जारी रखने का अज़म किया। The resolution 39, resolution 47, whether it was a binding, whether it's a recommendation dependent on two states' goodwill, but I think Kashmir doesn't need articulation of the problems. Kashmir deserves resolution. You know, the message is very straightforward. Our High Commissioner said to say to India, enough is enough. All I'm going to say is I think there are a few others who need to be told enough is enough. And that includes the permanent members of the UN, whose prime responsibility it is to maintain peace in the world. I'm absolutely humbled to be around so many amazing activists and socialists and people that are passionate about humanity. This is so important that we're all singing from the same hymn sheet. We all are bothered about humanity. The contribution that the Kashmiri community has made to Britain's second city is second to none. I'm deeply proud of my association with the Kashmiri community. And it's not just the contribution that they've made economically in terms of the civic life of Birmingham. It is that they are the backbone of decency and integrity. And what they are outraged about, and they're absolutely right, is the way that their people have been treated back home. Friends, I want to thank as well Andrew for the fantastic work that he's doing with the team on Labour Friends of Kashmir. Very sad and sorry to hear about your personal situation this evening, Andrew. But as Anna said, it's a measure of the man that you're here with us this evening. It shows the passion that you have for this cause. And it's a passion that we share across the Labour movement, because there is no doubt that the situation in Kashmir is a scar on the conscience of the world. I just want to send my solidarity to the Kashmiris. We know in Luton, being born and bred Lutonian, I was born and brought up with my Kashmiri friends. So I've always understood the struggle that's been there. And as Yasmin said, we all have a responsibility to talk about this issue, to educate others on this issue, so that ultimately we can get peace and justice in Kashmir. पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मुअज़्ज़म अहमद खान ने कहा कि पाकिस्तान अपने कश्मीरी बहन भाइयों को कभी भी तनहा नहीं छोड़ेगा और दुनिया भर में कश्मीर के पुरअमन वकील का काम करता रहेगा। आखिर में उन्होंने लेबर पार्टी के रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया। Labour Party parliamentarians in the House in particular for maintaining the sharp focus on the continuing egregious human rights violation in Kashmir. Speaker after speaker spotlighted the horrendous atrocities being perpetrated by the Indian occupation forces. Heartening for the people of Kashmir and indeed for the people of Pakistan to know that the world is conscious to their situation, that they are not alone, that people outside are alive and sensitive to the plight of the Kashmiris and are able and willing to raise their voice in support of the voiceless. लेबर फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर के एहसन इकदाम से कश्मीर के मसले को जहां तकवीयत मिली, वहीं लेबर पार्टी की आला क़यादत को तफसील से आगाह भी किया गया। खावर राजा, 92 न्यूज़, ब्राइटन। आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले अपने आप को गैर महफूज महसूस करने लगे। लंदन के मेयर सादिक भी नस्ली और मजहबी तासुब का शिकार हो गए। सादिक खान कहते हैं कि रंग और नस्ल और मजहब की बुनियाद पर उन्हें मुसलसल धमकियां दी जा रही हैं। मज़ीद तफसीलात गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में।
मुहज़्ज़ब माशरे की गैर मुहज़्ज़ब हरकत। थर्ड वर्ल्ड को हलाकियात बताने वाले माशरों में अदम बर्दाश्त और नस्ली और मजहबी तासुब इंतहाओं को छूने लगा। इस शहर के मेयर सादिक खान को इसी शहर की आवाम ने खौफ में मुब्तला कर डाला। सादिक खान कहते हैं कि वो भी अपने शहर में नस्ली और मजहबी तासुब का शिकार हैं। धमकियां मिलने के बाद पुलिस की दिन रात सिक्योरिटी हासिल करने पर मजबूर हो चुका हूँ। मुकामी मीडिया के मुताबिक मेयर सादिक खान को ये सिक्योरिटी इसकी रंगत और मुस्लिम अकीदे की वजह से मिलने वाली धमकियों के बाद हासिल करना पड़ी। इन हालात का इजहार सादिक खान ने लेबर पार्टी की कॉन्फ्रेंस से खिताब में किया। उनका कहना था कि पुलिस ने बताया कि मेरे अहले-खाना खतरे का शिकार हैं। वो अक्सर साइकिल चलाकर ऑफिस जाते हैं, ट्रेन भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये आम शहरियों की तरह मामूल की बात नहीं। उन्हें हतूत ईमेल्स के जरिए धमकियां मिली। ये इंतहाई खौफनाक बात है। मेयर सादिक खान का ये भी कहना था कि धमकियों का सिलसिला काफी अरसे से जारी था। मेयर होने की वजह से वो इस सूरत हाल और सिक्योरिटी बारे बातचीत करने से हिचकिचाते रहे। वो नहीं चाहते कि अकलीती पस मंजर से ताल्लुक रखने वाले किसी दूसरे शख्स की सियासत में आने पर हौसला शिकनी हो। बरतानवी नशरियाती अदारे से इस्लामोफोबिया पर बात करते हुए मेयर लंदन सादिक खान ने नस्ली और मजहबी तासुब फैलाने वाले शरपसंद नासिर को दो टोक पैगाम दिया कि वो इस्लामोफोबिया का शिकार लोगों के आगे हथियार नहीं डालेंगे। Me saying it comes with the package is discouraging somebody to run to be the mayor, and so I don't talk about it. And so you've asked me the question. I've tried to be honest with you. It's probably the first time I've talked about it. I get emotional. And I think the stance of our team during the Euros has given me the confidence to talk about it. But I'm not going to allow these racists and these Islamophobes to intimidate me, and I will never bow to them. And we need to know what's going on. We need to know that the mayor of the greatest city in the world needs protection 24 hours a day, 7 days a week because of the colour of his skin and the God he worships. That can't be right. मेयर सादिक खान दूसरी बार लंदन के मेयर मुंतखब हुए हैं और नस्ल परस्ती, इस्लामोफोबिया के हवाले से खुद को मिलने वाली धमकियों के हवाले से उन्होंने पहली बार खुलकर इजहार ख्याल किया। गुलाम हुसैन वान, ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़, लंदन। नॉटिंघम में 40वीं मुहर्रम की मुनासबत से शोहदाए करबला की याद मनाते हुए अब्बास हाउस से लेकर अल ज़हरा फाउंडेशन तक रैली मुनक्किद की गई, जिसमें पाकिस्तानी और दीगर मुस्लिम कम्युनिटीज़ के अफराद ने भरपूर शिरकत की। ख़वातीन की बड़ी तादाद भी इन रैलियों में शरीक हुई। मज़ीद तफसीलात हमारे नुमाइंदे शहजाद अरमान की इस रिपोर्ट में जानिए। जब मुझे आपके कातिल ने शोहदाए करबला को खराज अकीदत पेश करने के लिए मौलाना मकबूल हुसैन अलवी की क़ियादत में रैली निकाली गई, जिसमें मुहिबान अहले बैत ने मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ शिरकत की। शोहदाए करबला की याद में निकाली गई इस रैली के शुरका लब्बैक या हुसैन की सदाएं बुलंद करते हुए जुलूस की शक्ल में अल ज़हरा हाउस पहुँचे। इस रैली में बच्चों, बूढ़ों और ख़वातीन ने बड़ी तादाद में शरीक होकर अहले बैत अतहार से अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार किया। अहले इश्क का रिश्ता है उस घराने से जहाँ कटे हुए सर भी कुरान पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज चहलुम सैयद व शुहदा के सिलसिले में नॉटिंघम ने हमने पहली मरतबा एक मशी वोक का बंदोबस्त किया। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तादाद में यहाँ पे मोमिनीन और मोमनात अपनी बच्चों समेत यहाँ पे इस मशी में इस वोक में शामिल हुए। अर्बईन वोक का एहतमाम किया गया था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह 97 मिडलटन बुलेवार्ड से ज़हरा फाउंडेशन तक की थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये पीस वॉक में हिस्सा लिया। We did a walk representing our Imam Hussein. Imam Hussein is the third Imam and of our Shia's third Imam, and he is a grandson of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We are here to commemorate the day of Arba'in of our Imam Hussein alayhi salam, who sacrificed his life with his 72 loyal companions, with his sister and his family. He sacrificed everything for Islam. So we are gathered here to forgive our Imam Hussain alayhi salam. इस मौके पर मौलाना मकबूल हुसैन अलवी का कहना था कि हक व बातल की ताकतों में जब भी टकराव होगा, जीत हमेशा हक की होगी। बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने वहाँ फरमाया था, जनाब सैयद सज्जाद घबराओ नहीं, यहाँ कब्रें भी बनेंगी, यहाँ मज़ार भी बनेंगे, यहाँ दुनिया से ज़वार भी आएंगे और आज हम इसके शाहिद हैं। और मैं यहाँ नॉटिंघम से हिस्सा अर्बईन के मुख्तसर सी वोक भी हुई है।
मुकर्रीन का कहना था कि इमाम हुसैन और अहले बैत अतहार की लाजवाल कुर्बानियाँ क़यामत तक इंसानियत की सरबलंदी के लिए मशले राह रहेंगी। बाद में शुरका ने अब्बास हाउस में नोहा ख्वानी की महफिल भी बर्पा की। पुरसोज महफिल और रैली का एहतमाम गुलाम अब्बास, आसिफ जैदी, आमिर अब्बास और महमूद जाफरी ने किया। शहजाद अरमान, 92 न्यूज़, नोटिंगम। दुनिया भर की तरह मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी चहलुम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नहायत अकीदत व एहतराम से मनाया गया। मीरपुर और गिरदोनवा से ताल्लुक़ रखने वाले अज़ादारान ने शहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश किया, जबकि उलमाए कराम ने चौक शहीदा में उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद व इत्तफाक का पैगाम दिया। मज़ीद अहवाल मीरपुर से आबिद कासमी की रिपोर्ट। दुनिया भर की तरह मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी चेहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नहायत अकीदत व एहतराम से मनाया गया। हर साल की तरह मीरपुर की मरकजी इमाम बारगाह से 9 बजे मजलिस चेहलम के बाद जुलूस बरामद हुआ, जो शबीह जुलजनाह के साथ अपने मरकजी रास्तों से होता हुआ अकबर रोड पर नमाज ज़ोहरैन और लंगर के बाद चौक शहीदा पहुँचा, जहाँ उलमाए कराम ने खिताब किया। इन्होंने पत्थर बरसाए थे हुसैनियों पे, लिहाजा ये तुम्हारी रुसवाई है, लेकिन हम देखो, हम हुसैनी हैं, हम करबलाई हैं, हम मुहब्बे वतन हैं, वतन से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। उलमाए ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हक व अदल को बर्पा करने की खातिर क़याम किया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूमैन अलैहिस्सलाम के वो अक़वाल जो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में बयान हुए हैं, उनसे ये बात फाज़िया हो जाती है कि आप अलैहिस्सलाम का मकसद हक व अदल और दीन खुदा को कायम करना, शरीयत की हाकमियत को वजूद में लाना और जुल्म व सरकशी को जड़ से उखाड़ फेंकना था। नमाज मगरिब के बाद चेहलम का जुलूस मातमी दस्तों के साथ वापस इमाम बारगाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। उलमा कराम ने शुरका को बताया कि अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने दुरुस्त और बजा इरादों के जरिए शुहदाए करबला और फलसफा शहादत को सही मानों में जिंदा रखें। कैमरामैन ज़िशान रजा के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर। बरतानिया में कोरोना के दौरान शहरी कारोबारी अफराद की सपोर्ट के लिए जारी की जाने वाली इमदादी स्कीम आज से ख़त्म हो जाएगी। एक अंदाजे के मुताबिक 10 लाख से ज़ायद लोग माली तौर पर गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो जाएंगे। माहिरीन का कहना है कि फरलू स्कीम के खात्मे से बेरोज़गारी में इजाफा हो सकता है। कोरोना वायरस की वजह से कितने लोगों ने इस स्कीम से फ़ायदा उठाया, जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम हुसैन, कहिएगा कि स्कीम बंद होने से क्या असरात मुरतब होंगे बरतानवी मुआशरे और मईशत पर? जी बिल्कुल, आज जो है वो फरलू स्कीम बरतानिया में ख़त्म हो चुकी है और कहा जा रहा है कि तकरीबन 10 लाख अफराद जो हैं वो उनका जो मुस्तकबिल है माली लिहाज से वो गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो गया है। बरतानवी एक्सचेकर ने आज कहा कि उन्होंने 70 बिलियन के करीब पाउंड के करीब जो रकूम है वो गुज़िश्ता कई माह में फरलो स्कीम के तहत जो है वो लोगों में तकसीम की, ताकि बेरोज़गारी जो है वो लोगों को बेरोज़गार होने से बचाया जाए। साथ उनका ये भी कहना था तकरीबन 11.5 मिलियन के करीब लोगों ने जो है वो इस स्कीम से फ़ायदा उठाया। उनका कहना था कि अब यह वक्त है, इस वक्त स्कीम ख़त्म करके लोगों को जो है वो एम्पावर किया जाए और लोगों को उनको दोबारा रोज़गार पर लाने के लिए जो है वो तरकीब दी जाए। साथ उनका ये भी कहना था कि जो बड़ी फर्म्स हैं, बड़ी कंपनीज़ हैं, उनको अर्ज किया जा रहा है कि वो मुलाजमीन को जो है वो दोबारा रेगुलाइज करें, उनको जो है वो जॉबों से फ़ारग ना किया जाए। लेकिन ज़रा ये बता रहे हैं कि 10 लाख लोगों का इस वक्त जो माली लिहाज से मुस्तकबिल है वो मखदूश लगता है और लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर जो है वो बरतानिया के अंदर बेरोज़गारी बढ़ सकती है, चूँकि बहुत सारी जो बड़ी कंपनीज हैं वो इस वक्त पैंडेमिक की वजह से जो माली मुश्किलात का शिकार हैं और वो फरलो स्कीम की वजह से जो है वो उन्होंने मुलाजमीन को जो है वो मुलाजमत पर रखा हुआ था और गवर्नमेंट स्कीम ख़त्म होने से जो है वो उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना होगा और हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर जो है वो बेरोज़गारी के अंदर भी जो है वो मज़ीद इजाफा हो जाए। जी, पाकिस्तान फाउंडेशन की जानिब से पाकिस्तानी कल्चर और कौमी ज़ुबान के फ़रोग के लिए बर्मिंघम में कवाली नाइट के नाम से दिलकश तकरीब का एहतमाम किया गया। कवाली नाइट में तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तफसीलात काबिल राजा की रिपोर्ट। ओवर
ओवरसीज पाकिस्तानी दियारे गैर में अपने कल्चर और कौमी जुबान को नौजवान नस्ल तक मुंतकिल करने के लिए भरपूर किरदार अदा करते दिखाई देते हैं। पाकिस्तान फाउंडेशन ने भी फरोग उर्दू के लिए कवाली नाइट के नाम से बर्मिंघम के हाल में तकरीब मुनक्किद की। म्यूजिकल नाइट में मुख्तलिफ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के तलबा और तालबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कवाल ग्रुप ने अपने फन से सामीन से न सिर्फ तालियों की सूरत में खूब दादे तहसीन समेटी बल्कि उन्हें झूमने पर मजबूर कर दिया। तकरीब के अख्ताम पर नौजवान नस्ल का यही पैगाम था कि हमें मिलजुल कर ऐसी तकरीबात का इनेकाद करते रहना चाहिए। आज का इवेंट बहुत अच्छा रहा। आई थिंक इस तरह के इवेंट्स और होने चाहिए, स्पेशली आफ्टर कोविड वी हैव नॉट हैड अ लॉट ऑफ इवेंट्स, सो इट्स लिटरली अमेजिंग टू सी ऑल दीस पीपल हियर। Thank you to TPF for getting Aston in the collaboration, and Aston Pakistan are going to come up with events like this in the upcoming year. आज बहुत मज़ा आया था। आज जलेबियाँ थी, ऊपर से चाय भी थी, and it was just a great atmosphere. A lot of Paksaks came together, and it was like a huge community of Pakistan here. We got to listen to Qawwali, जो traditional Pakistani music है, और ऊपर से सारे लोग इधर जो सारे आए हमें सपोर्ट करने के लिए। Alhamdulillah, it was one of the best events I've ever been to. The Qawwali was definitely the best part. Inshallah, come Aston Pakistan this year, it'll be an amazing time. Got a few events lined up this year. Me and Shman will be leading it, and inshallah we'll see you guys very soon. कल्चर सेलिब्रेट कर रहे थे जो हमारी कल की जनरेशन भूल जाएगी। हम वो मेक श्योर करें कि वो यादगार हो, हमारा पाकिस्तानी नस्ल यादगार हो। At the end day, Allama Iqbal, Qaid Azam, they all sat in the same seats that we sit in today. आज बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स थे जिसकी वजह से मैं खुश हूँ। ये सोसाइटी सारी जितनी सोसाइटीज़ हैं इन्होंने कोलैबोरेट किया। 2 साल का टाइम था, उसके अंदर कोविड की वजह से सारे जो थे अपने घरों तक महदूद थे, बाहर आने का किसी को टाइम नहीं मिला। सोशलाइजिंग जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है, आपकी डिप्रेशन और उन सारी चीज़ों को हेल्प आउट करता है। शुरका का ये भी कहना था कि ऐसी तकरीबात होती रहनी चाहिए ताकि हम अपनी तहजीब व तमदन से जुड़े रहने के साथ साथ पाकिस्तान के मस्बत चेहरा को दुनिया के सामने बेहतर अंदाज में पेश करते रहें। पाकिस्तान फाउंडेशन का कौमी ज़बान की तरवीज के लिए ये इकदाम इंतहाई काबिल तहसीन है। खावर राजा, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। तुर्की के शहर इस्तांबुल कदे बल्दिया के सदर फातह काई की तरफ से जोर आजमाई और रेसलिंग के प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। तुर्क पार्लियामेंटेरियन फातह सलमान डैनियल ओलू ने मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत की। आतिफ भट्ट की ये रिपोर्ट। तुर्की के शहर इस्तांबुल कदे कोई बल्दिया के सदर फातेह काया की तरफ से जोर आजमाई और रेसलिंग के प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। तुर्क पार्लियामेंटेरियन फातेह सुलेमान डेंजाओलो मेहमान खुसूसी थे। शुरका से बात करते हुए फातेह सुलेमान डेंजाओलो का कहना था कि वो बल्दिया के सदर और दीगर मेहमानों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने उन्हें बुलाकर इज्जत बख्शी। उन्होंने कहा कि हम अपने लोगों और कौमी खिलाड़ियों के साथ मौजूद हैं। उनका कहना था कि सदर रजब तैयब अर्दगान हमेशा से ही खेलों के प्रोग्राम को प्रमोट करते रहे हैं ताकि नौजवान नस्ल की फिटनेस बरकरार रह सके। आखिर में फातेह सुल्तान ने 1968 में शहीद होने वाले कमिश्नर के खानदान से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने उस्मान मस्जिद में जोहर की नमाज अदा करने के बाद कदे कोई में अपने वोटर से भी मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। अली शाहीन तुर्क पार्लियामेंटेरियन चेयरमैन पाक दोस्ती और फातेह सुल्तान वो पार्लियामेंटेरियन हैं जो हमेशा पाकिस्तानियों की खिदमत में पेश रहते हैं। आतिफ भट्ट, 92 न्यूज़, तुर्की। तुर्की की इस्तांबुल यूनिवर्सिटी शोबा उर्दू के हेड और साबिका हेड यूनुस एमरे पाक तुर्क कल्चरल लाहौर प्रोफेसर खलील तोकार ने लाहौर से आए मशहूर शायर सऊद उस्मानी की किताब मुसाफिर की रुनमाई की तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें शोबे के असातिज़ा कराम ने शिरकत की। आतिफ भट्ट की रिपोर्ट देखिए। तुर्की की इस्तांबुल यूनिवर्सिटी शोबा उर्दू के हेड और साबिका हेड यूनुस एमरे पाक तुर्क कल्चर लाहौर प्रोफेसर खलील ने लाहौर से आए मशहूर शायर सऊद उस्मानी की किताब मुसाफिर की रुनमाई की तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें शोबे के असातिज़ा कराम ने शिरकत की। डॉक्टर राशिद ने सदारती अवार्ड याफ्ता जलाल सुईदान और मैडम मार्जू और दीगर मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का तारुफ कराया। मेहमानों से खिताब करते हुए शायर सऊद उस्मानी का कहना था कि प्रोफेसर खलील हमारे पुराने दोस्त और पाकिस्तान में तुर्की
हकीकी पहचान है। पाकिस्तान और उर्दू से मोहब्बत और ताल्लुक ने इन्हें मुनफरिद हैसियत दे दी है। उन्होंने किताब की रुनवाई की तकरीब सजाने पर शुक्रिया अदा किया। आखिर में प्रोफेसर डॉक्टर खलील ने सऊद उस्मानी को शील्ड भी पेश की और सऊद उस्मानी ने प्रोफेसर डॉक्टर खलील को किताब का तोहफा पेश किया। आतिफ बट, 92 न्यूज़, तुर्की। आज़ाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली के हल्का 12 चढ़ोई 5 में ज़मीनी इंतखाब 10 अक्टूबर को होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस हल्के से राजा रियासत को टिकट जारी किया है। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के रहनुमाओं का एक नुमाइंदा मुशावरती इजलास राजशहर में मुनक्किद हुआ, जिसमें मुकामी रहनुमाओं ने शिरकत की। मुशावरती इजलास का मजीद अहवाल एतजाज़ आसिम चौधरी की इस रिपोर्ट में। हल्का 12 हर होई 5 का ज़िमनी इंतखाबात बराए कानून साज असम्बली आज़ाद कश्मीर 10 अक्टूबर को होगा। इसी हवाले से रोजदेल में नून लीग का एक खुसूसी मुशावरती इजलास हुआ। मुशावरती इजलास से खिताब करते हुए राजा सगीर अहमद, मिर्जा कामरान, राजा खलील अहमद और राजा तारिक रब्बानी ने कहा कि राजा रियासत एक बेहतरीन सियासी वर्कर हैं। राजा रियासत जीत कर हल्के की बेहतरी और बुनियादी सहूलियात की फरहमी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। बाद अज़ान 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए इन रहनुमाओं ने पार्टी की कामयाबी की उम्मीद जाहिर की। राज्य में एक बड़ी कम्युनिटी हल्का 5 की, वो राजा रियासत साहब की इलेक्शन में भरपूर सपोर्ट करें, उनको वोट दिलवाएं, क्योंकि आप लोगों के सामने है जो दूसरे लोग इलेक्शन लड़े हैं 25-30 साल से, और 3 माह पहले उन्होंने जो लोगों का, मजदूर लोगों का, गरीब लोगों के साथ जो अशर किया है, आप उनके साथ कंपैरिजन कर लें राजा रियासत का, कि वो जो दिन रात वो लोगों में रहते हैं, लोगों के काम काज करते हैं। अगर ऐसे बंदे को आप वोट देंगे, उनको कामयाब करवाएंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह लोगों की जो मुश्किलात में जो ना वो दूर होंगी, लोगों के काम काज होंगे, और एक अच्छा जो है ना वो कैंडिडेट हम असम्बली में भेजेंगे और लोगों को जॉब मिलेंगी, तरक्याती काम होंगे। जो 10 अक्टूबर को ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं, उनके हवाले से राजडेल में जो हल्का 5 में जितने भी लोग रहते हैं, उनको हम भरपूर अपील करते हैं कि वो मुस्लिम लीग नून की सपोर्ट करें। ज़िमनी इलेक्शन जो 10 अक्टूबर को हो रहे, राजा रियासत खान साहब की हमायत का ऐलान राजडेल की मोस्टली कमेटी ने यहाँ पर आयदा किया है कि हम राजा रियासत साहब खान को सपोर्ट करेंगे। इसकी वजह यह है कि राजा रियासत खान साहब पिछले 25 साल से अवाम की खिदमत कर रहे हैं और उनका जो जज्बा है वो दीदनी है। ये निशिस्त साबिक अपोजिशन लीडर और सदर आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी चौधरी मोहम्मद यासीन ने छोड़ी थी। वो गुज़िश्ता इलेक्शन में 2 निशिस्तों पर कामयाब हुए थे, ताहम उन्होंने हल्फ दूसरे हल्के की निशिस्त पर लेते हुए इसे छोड़ दिया था। इस निशिस्त पर अब मुकाबला मुस्लिम लीग नून के राजा रियासत, तहरीक इंसाफ के फरीद शौकत और पीपल्स पार्टी के आमिर यासीन के दरमियान होगा। हल्का 5 हर होई का इलेक्शन आज़ाद कश्मीर में नौ मुंतखब तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए बड़ा अहम है। हार या जीत आने वाले इलेक्शन के लिए संगे मील रखती है। एतजाज आसिम चौधरी, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर। सऊदी वजारत हज उम्रा ने उम्रा ज़ायरीन की रोज़ाना तादाद बढ़ाकर 1 लाख कर दी। मस्जिदुल हराम में नमाजियों की रोज़ाना तादाद भी बढ़ाकर 60,000 कर दी गई। तफसीलात जानते हैं रियाद से हमारे नुमाइंदे उमर अली की इस रिपोर्ट में। अल्लाह के घर की ज़ियारत के ख्वाहिशमंद दुनिया भर में बसने वाले मुसलमानों के लिए बड़ी खुशखबरी। सऊदी अरब ने उम्रा ज़ायरीन की तादाद 60,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी। पहले योमिया 60,000 अफराद उम्रा की सआदत हासिल करते थे, अब 1 लाख अफराद अल्लाह के घर की ज़ियारत करेंगे, उम्रा की सआदत हासिल करेंगे। सऊदी वजारत हज उम्रा के मुताबिक उम्रा ज़ायरीन की तादाद रोजाना 5,500 से 1 लाख बढ़ाने के साथ साथ नमाजियों की तादाद भी बढ़ा दी गई है, जो पहले 40,000 थी, जिसे अब 60,000 कर दिया गया है। सऊदी वजारत हज उम्रा का कहना है कि ज़ायरीन की तादाद बढ़ाने के साथ मस्जिदुल हराम में हिफाजती तदाबीर और SOPs पर अमल दरामद को भी यकीनी बनाया गया है। सऊदी शहरी और मुमलकत में मुकीम गैर मुल्की उम्रा और मस्जिदुल हराम में नमाज की अदायगी के लिए पहले की तरह तवक्कलना ऐप के जरिए वक्त ले सकते हैं। मुस्लिम लीग काफ सऊदी अरब की जानिब से शहीद जमहूरियत चौधरी ज़हूर इलाही की 40वीं बरसी की मुनासबत से तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें सऊदी अरब के तमाम शहरों से पार्टी जिम्मेदारान के साथ साथ दीगर जमातों और फोरम के जिम्मेदारान ने भी शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जद्दा से अदील रियाज की इस रिपोर्ट में।
जद्दा में शहीद जमहूरियत चौधरी ज़हूर इलाही की 40वीं बरसी की मुनासबत से तकरीब हुई, जिसमें सऊदी अरब के तमाम शहरों से पार्टी जिम्मेदारों के साथ साथ दीगर जमातों और फोरम्स के जिम्मेदारों ने भी शिरकत की। तकरीब की सदारत पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ सऊदी अरब के चेयरमैन चौधरी अजहर वड़ाइच ने की। तकरीब से खिताब करते हुए चौधरी अजहर वड़ाइच, इम्तियाज हुसैन, चौधरी अकरम गुजर, सैयद रियाज बुखारी, चौधरी तसव्वुर, मियाँ अहमद बशीर और दीगर ने चौधरी ज़हूर इलाही की सियासी और समाजी खिदमात पर रोशनी डाली और चौधरी बरादरान, चौधरी शजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही की मुल्क व कौम के लिए खिदमात, सियासी बसीरत को खराज तहसीन पेश किया। तकरीब से स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने ऑनलाइन खिताब करते हुए कहा कि खादिम हरमैन शरीफैन शाह सुलेमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान की पाकिस्तान के साथ मोहब्बत काबिल कदर है। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि वो तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों का दिल की था गहराइयों से शुक्रगुजार हैं जो उनकी खुशी और गमी में शरीक होते हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान ने पाकिस्तान का दौरा किया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का मैं ख़ुद सफ़ीर हूँ, इससे और बढ़ के क्या बात हो सकती है। मैं यहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ुसूसन पाकिस्तान मुस्लिम लीग सऊदी अरब के सदर चौधरी अजहर वड़ाइच साहब, जिनकी सदारत में चौधरी ज़हूर इलाही शहीद की बरसी की तकरीब का इनाकाद सऊदी अरेबिया में किया जा रहा है। चौधरी ज़हूर इलाही शहीद ने कभी अवामी खिदमत और उसूलों पर समझौता नहीं किया था। हमेशा उन्होंने मज़लूमों का, गरीबों का, ज़रूरतमंदों का साथ दिया और उन्होंने कभी परवाह नहीं की थी। और ख़ास तौर पे जो उनकी खिदमत में सबसे ज़्यादा बड़ी खिदमत थी, ख़त्म नबूवत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लिया, बल्कि वो ये कहते थे ये हमारे ईमान का हिस्सा है। तकरीब के आखिर में चौधरी ज़हूर इलाही की मगफरत और मुल्क कौम की सलामती के लिए ख़ुसूसी दुआएं मांगी गईं। आखिर में शुरका के एजाज़ में पुरतकल्लफ इशाया भी दिया गया। अदील रियाज, 92 न्यूज़, जद्दा, सऊदी अरब। सऊदी अरब में जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के अहदेदारों और मेंबरान का इजलास हुआ, जिसमें पाक सऊदी ताल्लुकात के हवाले से तबादला ख्याल हुआ। दारुल हुकूमत रियाज में होने वाले इजलास में मुकर्रिरीन का कहना था कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात की मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। मकामात मुक़द्दसा की वजह से पाकिस्तानियों की सऊदी अरब के साथ ख़ास मोहब्बत और रूहानी ताल्लुक़ है और दोनों ममालिक ने हमेशा मुस्लिम दुनिया में मुस्बत और अहसन किरदार अदा किया। सऊदी अरब में मुकीम लाखों पाकिस्तानी सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के मशकूर हैं कि उन्होंने हमेशा पाकिस्तानियों को अहमियत दी है और रोज़गार के बेहतर मौक़े फ़राहम किए। इजलास से हाजी मुमताज़ खान, मौलाना मुफ्ती अब्दुल जब्बार, नासिरुल्लाह समेत दीगर ने भी खिताब किया। सऊदी अरब में गवर्नर कसीम शहजादा फैसल बिन मशल बिन सऊद बिन अब्दुल अजीज़ से सफ़ीर पाकिस्तान बिलाल अकबर ने मुलाकात की, जिसमें उन्होंने बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। गवर्नर कसीम ने कहा कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताउन और शराकत के रिश्ते मजबूत बनाने का ख्वाहिशमंद है। इस मौके पर सफ़ीर पाकिस्तान का कहना था कि पाक सऊदी ताल्लुकात हमेशा से हुकूमती और अवामी सतह पर मजबूत रहे हैं और पाकिस्तान भी सऊदी अरब को अपना मुखलिस और अहम दोस्त समझता है। सफ़ीर पाकिस्तान बिलाल अकबर इन दिनों मुमलिकत में मौजूद पाकिस्तानी शहरियों के हवाले से सऊदी अरब के अहम ओहदेदारान से मुलाकातें करके दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी और रिवायती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। कनाडा में पाकिस्तान के कायम मकाम हाई कमिश्नर अमीर खुर्रम राठौर ने कहा कि वो कनाडा में सफारत के दौरान पाकिस्तानी कम्युनिटी की खिदमत और उन्हें पाकिस्तान की कौमी तरक्की में शरीक करने के अलावा दोनों ममालिक के माबैन तिजारत और मुआशी ताउन को फ़रोग़ देने की कोशिश करेंगे और कैनेडियन यूनिवर्सिटियों और कॉलेजेस में पाकिस्तानी तलबा और तालिबात की तादाद को बढ़ाने पर खुसूसी तवज्जो देंगे। तफसीलात के मुताबिक कायम मकाम हाई कमिश्नर अमीर खुर्रम राठौर का मज़ीद कहना था कि मौजूदा हुकूमत बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के कौमी तरक्की में किरदार को न सिर्फ कदर की निगाह से देखती है बल्कि उन्हें पाकिस्तान का असासा समझती है, जिन्होंने पिछले साल 29 अरब डॉलर से ज़ायद मालियत की तरसीलात ज़र पाकिस्तान भिजवाकर मुल्क की मईशत को न सिर्फ संभाला दिया बल्कि रोशन डिजिटल अकाउंट में भी बढ़ चढ़ कर सरमायाकारी की, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बैरूनी अदायगियों में तवाज़ुन को मुनासिब हद तक बरकरार रखने में मदद मिली।